ایک فیمیل ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بہت ہینسم بیٹا ڈسیبلڈ ہے. ان کی مدر ان لا نے ان کے ہسبینڈ کی زندگی کی تمام کمائی ان سے چھین لی ہے اور ان کے فائنینشیل حالات اچھے نہیں ہیں. وہ بہت پریشان رہتی ہیں، بہت پریشر فیل کرتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ نے سختیاں دیکھی ہوئی ہیں یا آپ مشکل سے گزری ہوئی ہیں تو آپ سمجھ سکتی ہیں اور آپ اس کے لیے کچھ ریمیڈیز دے سکتی ہیں. سو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ اس طرح اوپنلی آ کے مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. آئی فیل ویری ویری گڈ کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی جگہ تو ہے جہاں پہ آپ لوگ اپنے دل کی بات بغیر کسی ججمنٹ کے فیئر کے، بغیر کسی کسی بھی طرح کی لمیٹیشن کی آپ یہ بات کر سکتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ اس ایج میں ہیں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی، نہ میری کوئی بہن ہے، تو اس لیے میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں. پلیز مجھے کچھ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ایک اور کلائنٹ ہے میری جن کی بہنیں ڈسیبلڈ تھیں اور وہ ان کا خیال رکھتی تھیں، اور تھوڑے دن پہلے ان کی ایک بہن کی ڈیتھ ہو گئی جو ڈسیبلڈ تھیں. پہلے تو میں ڈسیبلڈ لوگوں کے بارے میں سب کو بتانا چاہوں گی کہ ان دونوں کلائنٹس کا تعلق آئی تھنک پاکستان سے ہے، اور وہاں کی سوسائٹی میں جیسے انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈسیبلڈ لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو موک کیا جاتا ہے، ریڈیکیول کیا جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ ڈسیبلڈ لوگوں کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں ایون ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہیں یا یہ نحوسیت ہے، اس کو اپنے گھر سے نکالیں، اور اس طرح کی عجیب و غریب باتیں. سو ایسا بالکل نہیں ہے. ریالٹی اس کے بالکل اپوزٹ ہے. جب کوئی بھی انسان یا کسی فیملی میں کوئی بچہ یا کوئی بھی فیمیل یا میل ڈسیبلڈ ہوتا ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ہیوی کارما ہوتا ہے. ایسے سول کا کارما اتنا زیادہ ہوتا ہے تو وہ سول بیسکلی آپ کہہ لیں کہ اس کی لائف ٹائم میں یہ ڈسیبلٹی آ جاتی ہے تاکہ اس کا کارما جلدی برن آف ہو سکے. جو لوگ ڈسیبلڈ ہوتے ہیں یہ لوگ کارمک ہوتے ہیں خود کی نیچر میں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں یا معذور لوگ ہوتے ہیں ان کی بد دعائیں بہت جلدی لگ جاتی ہیں. اس کی ریزن یہی ہے ان کی دعا یا بد دعا لگنے کی، کیونکہ یہ لوگ کارمک ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور اگر آپ کسی ایسے پرسن ہیں آپ کی لائف میں، کوئی بچہ ہے جس کو آٹزم ہے، کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور آپ ان میں سے کسی انسان کا خیال رکھتے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ بیسکلی آپ کی خود کی جو کارما ہے، ہر انسان کے پاس کارما ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں بغیر کارما کی نہیں آیا. دیٹ مینس کہ آپ اپنے کارما کو ہلکا کر رہے ہیں. آپ نہ صرف ایک ڈیوٹی فلفل کر رہے ہیں بلکہ آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور آپ کا گڈ کارما ایڈ ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ جیسے جیسے لائف آگے جائے گی آپ کی لائف میں آسانی آئیں گی. ان نون لوگ آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں، اسٹرینجرز آ سکتے ہیں جو آپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بنیں گے، آپ کی وائس بنیں گے، جس کی ون آف دا ایگزامپلس میں خود ہوں. یہ دونوں فیمیلز میرے لیے بہت رینڈم ہیں. ایک سے تو میں نے کوئی اماؤنٹ نہیں لی اور ایک سے بہت چھوٹی اماؤنٹ جو کہ صرف جس میں میرے اپنے چارجز بالکل بھی انکلوڈ نہیں تھے. ریزن بینگ کہ ان لوگوں کی، ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آپ لوگ جو اچھا کر رہے ہیں، جو نیکی آپ لوگ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یونیورس آپ کو وہ چیزیں واپس دے رہی ہے. ناؤ ان فیمیلز کے لیے جو گھر رہتی ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں اور جن کے ہسبینڈ شاید ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پا رہے کسی بھی طرح فائنینشلی، یا وہ خود فائنینشلی جنہوں نے کچھ کرنا ہے، ایسی فیمیلز کے لیے جو پریشر کا شکار ہیں. دیکھیں، آپ لوگوں کا جو اسٹریس ہے نا، 80% آف دا اسٹریس کمز فرام منی. چاہے آپ اس بات کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں، منی جو ہے بیسکلی فیمیل کو سیکیورٹی دیتا ہے. منی فیمیل کو امپاور کرتا ہے. جب آپ کے ہاتھ میں، اگر فیمیل کے ہاتھ میں پیسے بھی نہ ہو، کچھ پیسے سائڈ پہ پڑے ہوں، آپ کو پتا ہو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ پڑی ہے، تو آپ بہت زیادہ ریلیکسڈ رہتی ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو آپ کو ہر وقت آپ اچھا فیل نہیں کریں گے. اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ فزیکلی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اسٹریس میں ہیں. آپ کو تھائرائڈ ہو سکتا ہے، آپ کا ہیئر فال ہو سکتا ہے، آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، آپ کو بہت سی بیماریاں ہیں جو اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہارٹ ڈیزیزز، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. اوبیسٹی ہو سکتی ہے کیونکہ فیئر بیسکلی اوبیسٹی کاز کرتا ہے. سو اینی وے، آپ فیمیلز کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے منی کو اسٹیبلش ارن کرنے کا سورس بنائیں. اب
फिजिकल वर्ल्ड में क्या किया जा सकता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किया जा सकता है, दोनों मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, जब भी कोई काम होता है ना, फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ बाद में शो होती है, पहले वो काम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शो होता है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अगर आप बात करते हैं तो उसमें यह है कि मनी रिचुअल्स होते हैं, मनी बूस्टिंग रिचुअल्स, मनी बूस्टिंग एनर्जीज, ये चीज़ें होती हैं, ये पेड रिचुअल्स होते हैं. अगर आप ये करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप यूट्यूब पे आप सर्च करें कि ओवरनाइट मनी अबंडेंस, इस तरह का कुछ ना कुछ आप लिख के, या मनी सबलिमिनल्स, मनी फ्रीक्वेंसी, वेल्थ फ्रीक्वेंसी, इसको आपने अपने सर के पास रोज़ाना आपने ओवरनाइट लगा के सोना है. और जब आप ये करेंगे तो बेसिकली आपका ब्रेन जो है वो रीप्रोग्राम होगा, और आपकी जो बेसिकली रियलिटी होती है ना हर इंसान की, जो उसका ट्रुथ होता है, जिस चीज़ में वो जी रहा होता है, वो कुछ नहीं होता बजाय इसके, सिर्फ इसके कि वो उसके अपने दिमाग की जो आप कह लें कि लिमिटेशंस होती हैं या एबिलिटीज़ होती हैं. सो जितना आपका माइंड मनी फ्रीक्वेंसी पे आएगा, मनी पे आएगा, ये सब्लिमिनल्स, ये फ्रीक्वेंसी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं कि आप बैठे बैठे होंगे, आप दूसरे लोगों की तरह शायद इतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन स्टिल आप मनी रिसीव कर रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं से मनी की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी. सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ये चीज़ है. दूसरी चीज़ जो है वो आप क्या कर सकते हैं मनी को बूस्ट करने के लिए, वो कुछ चैंटिंग्स हैं. आप अपने तौर पे कोई ना कोई मंत्रा, मैं आपको स्पेशली कहूँगी, कोई ना कोई मंत्रा आप ढूंढेंगे यूट्यूब पे. मंत्रा इसलिए क्योंकि मंत्रा के जो लफ्ज़ होते हैं वो वाइब्रेशंस होते हैं. जब आप उनको बोलते हैं तो कुछ खास वाइब्रेशंस आपके मुंह से बाहर जाती हैं एटमॉस्फेयर में. उससे ये होता है कि आपकी आप कह लें कि फ्रीक्वेंसी रेज होती है, और आप कह लें कि आप एक मैसेज सेंड आउट करते हैं यूनिवर्स को कि यू नीड मनी, और आप उस फ्रीक्वेंसी पे जाने लगते हैं. और वो ये मांत्रास बहुत जल्दी काम करते हैं एज कम्पेयर टू अदर चीज़ें. मांत्रास और सब्लिमिनल्स, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये दोनों चीज़ें मैंने खुद की हुई हैं, मुझे पता है. तीसरी चीज़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिससे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं आपके मनी के चांसेस, या आपको अबंडेंस रिसीव हो, वो ये है कि आपने अपना पानी बनाना है. जैसे कभी फुल मून हो, फुल मून में आपने कोशिश करना है कि एक पानी की बोतल आप बाहर रखते हैं, उसके ऊपर आपके जो भी गोल्स हैं वो आप लिखते हैं मनी से रिलेटेड. उसके बाद आप उस पानी को इस्तेमाल करें. अगर आजकल के दिन है, मून नहीं है पूरा, ये खाली फुल मून पे आपने करना है, लेकिन याद रखिए उस दिन ग्रहण ना लगाओ, एक्लिप्स ना हो. अगर वो दिन नहीं है, फुल मून नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कोई भी आपके पास पानी की बोतल है या आपका जग है, उसके ऊपर आप मार्कर से जो रिमूव हो सकता हो, या प्लास्टिक की बोतल हो तो उसमें पानी डालें और उसके ऊपर लिख दें कि इतनी अमाउंट मुझे एक वीक में मैं कमा रही हूँ, या इतने पैसे मुझे मिल रहे हैं. ग्रीन कलर से कोशिश कीजिए आप लिखिएगा, ग्रीन मार्कर से. इससे क्या होगा, आपके एग्जिस्टेंस के अंदर वाटर जो है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है. इससे आपके एग्जिस्टेंस के अंदर मनी एनर्जी आएगी. आप खुद ब खुद मनी एनर्जी से सोचेंगे. और मनी का जो दो सबसे बड़े ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक है फियर का. जब तक आपको किसी भी चीज़ का फियर है, मनी आपके पास नहीं आता. मनी फियर से भागता है. सो यू हैव टू बिकम फियरलेस. आई अंडरस्टैंड कि जब आपके फाइनेंसेस कम होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस वाली स्टेट में जा रहे होते हैं और आपका कंट्रोल नहीं हो रहा होता खुद पे. लेकिन जिस वक्त आप ये सेल्फ कंट्रोल को मास्टर करेंगे, उस वक्त आप देखेंगे कि चीज़ें यूं एकदम से बदलती हैं. सो फियर को आपने रिलीज करना है. और अगर आपके दिल में गम है, हार्ट का अगर ब्लॉकेज हो, तो हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से भी मनी जो है लोगों का ब्लॉक होता है. तो आपने हार्ट का ब्लॉकेज भी रिलीज करना है. उसको रिलीज करने का तरीका ये है, कहीं भी आपको अपने महसूस होता है कि आपके अंदर किसी तरह का ब्लॉक है, व्हाट यू कैन डू इज़ आप कोई भी म्यूज़िक लगा लें, कोई भी चीज़ जो आपको हेल्प करती है काम डाउन करने में, उसको लगा के अपने बॉडी के उस पार्ट पे हाथ रखें. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने हार्ट को हील करना है तो मैं अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखूँगी और मैं इमेजिन करूँगी कि लाइट आ रही है गॉड की सोर्स से, और वो आके
मेरे दिल पे एंटर हो रही है, एंड जिसकी वजह से मेरे दिल में जितनी भी डार्कनेस है, जो कुछ भी है, वो तमाम चीज़ें हमेशा के लिए वाइप आउट हो रही हैं और मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है. जब ये सब कुछ आप कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको इसके बीच में रोना भी आए. वो रोना बेसिकली अच्छा होगा क्योंकि वो रिलीज होगा इमोशंस का. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. इसके अलावा मनी को इंक्रीज करने के लिए अगर आपके पास मनी प्लांट है, कोशिश करें अपनी सराउंडिंग में नॉर्थ वेस्ट में, इस साल के लिए कमरे में नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रखें. अगर आपके पास फाउंटेन है तो वो रखें. शायद अगर है, हो सकता है कि आप ये बातें सुन के आप लोग कहें कि नहीं, पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों का मनी से क्या ताल्लुक. नहीं, देखें, जितना ताल्लुक स्पिरिट का हर चीज़ से है, किसी और चीज़ का किसी चीज़ से नहीं है. जैसा स्पिरिट होता है वैसी रियलिटी होती है. जितना आपके स्पिरिट के अंदर इंडिपेंडेंस होगी, फ्रीडम होगी, ब्रेवरी होगी, खौफ नहीं होगा, उतना इजीली मनी आपको फ्लो करेगा. ये कुछ स्पिरिचुअल टिप्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल वंस में. देखें, पहली बात, आप जो ऐसी मदर्स होती हैं उनके लिए सबसे अच्छा काम होता है रिमोट जॉब्स. लेट्स सपोज कि आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, आपको जॉब्स नहीं मिल रही, बहुत अरसा आपने. पहले तो बात यह है कि आप अपनी सीवी को बेहतर करें. लोगों को सीवी ही नहीं बनानी आती है. अब तो चैट जीपीटी आ गया, आप उससे भी सीवी अच्छी बना सकते हैं. AWT फॉर्मेट की आप लोग सीवी बनाएं प्रॉपर तरीके से और उसको भेजें, साथ में कवर लेटर लगाएं, तो चांसेस आपके इंक्रीज होंगे. लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ट्राई की, आपकी जॉब नहीं लग रही है, व्हाट यू कैन डू इज कि आप बजाय ये सोचने के, जब हम जॉब का सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कोई और बंदा मनी का सोर्स है और हम मनी के रिसीवर हैं. यू हैव टू थिंक, अपने माइंड को आपने चेंज करना है. आपने ऐसे सोचना है कि आई एम द सोर्स ऑफ मनी, कि मुझसे पैसा आता है, मैं पैसा हूं, बेसिकली आई एम द क्रिएटर ऑफ द मनी. इस तरह से आप जब अपने माइंड को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे खुद से अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी. आप अपनी स्किल्स को देखें कि आपके पास क्या स्किल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान के पास कोई एक चीज़ होती है जो बाकी लोगों से बहुत हट के होती है, बहुत अच्छी होती है. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं चीज़ों को सेंस बहुत अच्छा कर लेती हूँ. साइकिक एबिलिटीज़ मेरी बहुत तेज़ हैं एज कम्पेयर टू, मैंने किसी और को इतना तेज़, इतना शार्प नहीं देखा एबिलिटीज़ में जैसे मेरी खुद की हैं. तो मैं इस चीज़ को, मैंने, आप कह लें कि ये मेरा पैशन भी है लोगों को हेल्प करने का, तो इसको मैंने अपनी मनी, आप कह लें कि मनी मेकिंग स्ट्रेटजी का पार्ट बनाया. इसी तरह आप सोचें क्या आप क्या कर सकती हैं. अगर छोटी मोटी कामों की बात करें, आप टीचिंग कर सकती हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन दे सकती हैं, कुरान पढ़ा सकती हैं. ये नहीं कि आप किसी का वेट करें, आप खुद से अपने ऐड बनाएं, आप खुद से फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगाएं. अगर लोग 500 रुपीज़ में, आप कह लें कि ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज, आप 250 में करें. शुरू में आपको थोड़ी सी, आप कह लें कि माइंडसेट चेंज होगा और थोड़ी सी आपको हर्डल आएगी. लेकिन वंस आप इस पाथ पे चलने लगेंगी तो आप रियलाइज करेंगी कि इससे अच्छा और फ्रीडम वाला पाथ कोई भी नहीं है. आप लोगों के लिए प्रेशर को अगर आपने कम फील करना है, एक ही तरीका है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कम से कम करें और मनी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें. मनी को ना सिर्फ सेव करें बल्कि जो मनी आपके पास है उसको मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई करने के तरीके क्या हैं? कुछ लोग बॉन्ड्स ले लेते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, जो भी आपकी लोकल तरीका है. कुछ लोग सोना ले लेते हैं. जो भी चीज़ आप समझते हैं, या अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से या किसी लर्नड बंदे से जिसने अपने मनी को अच्छा मैनेज किया हो, उससे आप एडवाइस लें और उस तरह से आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकती हैं. अदर देन दिस कि आप जॉब कर लें, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, मनी के लिए और क्या हो सकता है? देखें, मेंटल स्ट्रेस आपका मनी से रिलेटेड है. 80% ये तो चला जाएगा. माइंड को काम करने के लिए बेसिकली हर बंदे को, हर फीमेल को, हर माँ को, औरतों को तो ख़ास तौर पे, इवन मर्दों को भी, लेकिन औरतों के अंदर इमोशनल जंक ज़्यादा होता है. तो डेली बेसिस पे आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. मेडिटेशन क्या होता है? बेसिकली आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो लगा दें कि काम डाउन नर्व्स या इस तरह से 10 मिनट की वीडियो. उसमें आपने ये करना है कि आपने एक टांग के ऊपर दूसरी टांग, जैसे योगी लोग बैठते हैं आलती पालती मार के या चौकड़ी मार के, वैसे आपने बैठ जाना है और आपने लंबे सांस लेने हैं. और उन लंबे सांसों में सिर्फ आपने फोकस कोई एक चीज़ कर लें.
उस चीज़ पे आपने फोकस करना है. लेट्स सपोज आपने करना है कि आपका दिमाग काम डाउन हो रहा है, तो आपने एक सांस अंदर लेते हुए सोचना है कि आप पीस को इनहेल कर रही हैं, और जब आप एक्सहेल करेंगी, सांस बाहर निकालेंगी, तो आपने ऐसे सोचना है कि आप सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, जो भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशन है, वो सब कुछ आप बाहर निकाल रही हैं. सो मेंटली काम रहने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है. जो लोग आप लोग देखते हैं ग्राउंडेड होते हैं, जिन लोगों को किसी चीज़ का असर नहीं होता, ये वो लोग होते हैं जो मेडिटेटिव होते हैं. मेडिटेशन बेसिकली करती क्या है, इंसान का दिमाग स्टिल करने पे उसको कर देती है कि लाइक आपका, चाहे आपके एनवायरनमेंट में इतनी मर्जी आग लगी हो, चीज़ें गलत जा रही हो, जो मर्जी हो रहा हो, अगर आप डेली 10 से 30 मिनट मेडिटेशन करेंगी, इवन फॉर लाइक 3 months और 1 month, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखेंगी. मैं आपको एक कोई ख़ास वीडियो इसलिए नहीं दे रही हूँ मेडिटेशन की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद अपने ओन पे अपने इश्यूज़ के मुताबिक ब्राउज करें. लेकिन अगर आप लोग इंसिस्ट करेंगे तो आई कैन मेक अ मेडिटेशन वीडियो जिसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली उसको लगा सकते हैं, एंड देन यू कैन फॉलो, एंड डेफिनेटली उससे आप लोगों की मेंटल वेलबींग में भी फ़र्क पड़ेगा, हेल्थ में भी फ़र्क पड़ेगा. और मनी के हवाले से ऑलवेज रिमेंबर, मनी इज़ एन एनर्जी. अगर आप चाहते हैं मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, अगर आप एक फ़ीमेल हैं, तो अपना अपीयरेंस बेहतर करना शुरू करें. सबसे पहली बात, पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े, जिन कपड़ों में सुराख हैं, उन कपड़ों को मत पहने. रोज़ाना उठ के अपना गेटअप ठीक करें, अच्छा लगने की कोशिश करें. स्पेशली जब आप बाहर जाएँ तो अपना हुलिया ठीक कर जाएँ. और रात सोने से पहले जब आप गुनूदगी के आलम में हो, और सुबह उठते ही जब ऑलमोस्ट आपकी आंख खुल रही हो, नींद खुल रही हो, तो आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप ये एक ख़ास किस्म की लाइफ आप गुजार रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहती हैं कि आपकी इनकम इतने मिलियन हो पर मंथ, इतने मिलियन आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, आपने ये कपड़े पहने हुए हैं, आपका फिगर ऐसा है, आपके बाल ऐसे हैं, आपका घर ऐसा है, एक एक चीज़. अगर आप मेरी इन तमाम बातों को सिर्फ 30 डेज़ के लिए भी इम्प्लीमेंट कर लेंगी, तो आप खुद आकर मुझे कहेंगी कि आपकी सिचुएशन में ना सिर्फ फिज़िकल, स्पिरिचुअल, बल्कि मटेरियल, इसमें कंसिडरेबल चेंज आया है, ग्रोथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है. सो विद दैट आई एंड टुडेज़ वीडियो. और अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरह का इशू है, कोई रूहानी इशू है, स्पिरिचुअल इशू है, ब्लैक मैजिक, सो मेनी थिंग्स, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ईवल है, या आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, आप लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स मी, यू कैन ऑलवेज mention me in comment, you can also WhatsApp me. I'm here to help all of you, and it's always a pleasure talking to you guys. And मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ. अगर आपका कोई मसला है तो आप उसके बारे में भी खुद भी बात कर सकते हैं, इनबॉक्स में भी आके और कमेंट करके भी. आई होप ये वीडियो जिन्होंने रिक्वेस्ट की उनको यूज़फुल लगी होगी, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आसानी हो. आई कैन सी कि आपकी लाइफ में रोशनी है, लेकिन रोशनी अभी थोड़ा वो है फ्लेम, लेकिन इट इज़ देयर, पॉसिबिलिटी इज़ देयर, आप कर सकती हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है. सो गुड लक टू यू, एंड गुड लक टू ऑल द वुमेन हु आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, हु आर फाइटिंग फॉर देयर फैमिली, जो अपनी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, सबके लिए इतना सेक्रीफाइस करती हैं. हैट्स ऑफ टू वुमेन. You guys are amazing, and see you guys tomorrow. This is Ramsha Chaudhary, your beautiful host, a psychic and a spiritual healer, signing off from London. Goodbye, everybody.